thank you very much. And what could be a bigger honor for me to be sitting over here with Dr. Kothari. And sir, I'll just share something with you. I was a postgraduate in Maulana Azad Medical College. And this is the year, if I remember rightly, it was the year 1989. And in 1989, during my post-graduation, it so happened that we had a department of family welfare where we used to get these patients of sexual medicine. But that family welfare, so one day I just questioned our professor. I was in the first year of post-graduation. This was 1989. Mm-hmm. So I asked him, and the question was, why don't we have a department of sexual medicine? So the first thing which my professor did was laugh. And the second thing he said was, Dr. Kothari को यहाँ लेके आना पड़ेगा तभी चलेगा यहाँ का डिपार्टमेंट. So I'm just saying. आपकी दुआएं sir. Yes, from that point of view, sir. So kind of you, sir. And the truth is, Dr. Neeraj has been so kind of bringing this out into people, because nobody else brings it out, the most hidden, I would say the most hidden subject in front of people, to the people, कि कम से कम इंसान खुल के जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो अगर आप मुझसे सच पूछें कि जैसे आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, उसी रूप में मैं सच कहूँ तो ये सेक्सुअल मेडिसिन एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, सेक्सुअलिटी. और इसकी मेडिसिन पार्ट को पब्लिक के बीच में लाना हमारे देश में बड़ी परेशानी की चीज़ है. अगर आप मुझसे पूछें, न जाने इसमें कौन क्या कह बैठे और आपको किस रूप में ले बैठे. और उस टाइम पर इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना सर इन द 70s and 80s मस्ट हैव बीन क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर यू. एंड नीरज सर, आपके लिए इस कमिटी को चमका के नंबर 1 कमिटी बनाना has somehow been, must have been an experience for you. And thank you very much for being here and bringing this out as a public lecture. I think it's lovely. And the questions, the moment they start coming, it would be a pleasure to answer all those questions with Dr. Kothari. Thank you so much, Jindal sir. मैं एक बात कहना चाहूंगा. प्रकाश सर ने अभी कहा है कि शुरू में क्रिकेट में हमको भेज दिया. सर, ओपनिंग में हमें सचिन ही उतरता था कि सबको पता था कि वो सेंचुरी मारेगा. तो सर, यू आर डेफिनेटली not less than Sachin for sexual medicine in India. Definitely, sir. Thank you, sir. So to start with the questions, actually questions का ये आलम था कि बहुत क्वेश्चंस आए हमारे पास. हम लोगों ने उसको क्लब किया बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो ओवरलैप थे. So we bring out those 12 or 14 questions जो क्लब करके आए हैं. To start with, I just asked this question to Prakash Kothari sir, because अभी हमने सब बोला कि main we as a teenage, in fact me as a teenage, when I have some issues or want to get some knowledge about the sexual medicine, we usually ask the question to our peer or we search in the net. तो उनके जो हमारे friends थे, उनकी knowledge हमारे से ज्यादा नहीं थी. First thing, and whatever be in the internet, these are the unfiltered one. So here comes the first problem when the people are getting the wrong knowledge and they are practicing the wrong practices. So I just wanted to the first question to Prakash sir, what actually is the erectile dysfunction, or when we asked a person to have a erectile dysfunction? Because again मैं एक चीज आपसे ये पूछना करूंगा, because we have a lot of sex books available in the market, and people often came to me and they are asking, oh फलाने ने कहा we have a like half an hour, 1 hour and 2 hours का चलता है. So what actually we called at that person, yes, he is suffering from sexual dysfunction, erectile dysfunction. Yes. Over to you, sir. Right, sir. You see, erectile dysfunction means it's an inability to attain or maintain an erection of adequate quality for the mutually satisfying sex act is known as erectile dysfunction. कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के अंदर उत्तेजना की इतनी कमी हो कि वो सही तरीके से सहवास न कर पाए, उसे हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं जी. उसमें 2 चीज रहती है साहब.
एक रहता है शारीरिक रहता है, एक मानसिक रहता है, एक माने साइकोलॉजिकल रहता है और दूसरा ऑर्गेनिक रहता है। ये समझ लीजिएगा मेरे यहाँ if a patient comes with one situation, if he gets erection in one set of circumstances and not in the other, if he gets in the early morning, if he gets with one partner, if he gets after having a look at the pornographic literature, if he gets during masturbation, but not at the time of coitus, then the problem is situational and not constitutional. माने अगर एक व्यक्ति को इंद्रिय में उत्तेजना आती है सुबह हस्तमैथुन करते वक्त, किसी एक और पार्टनर के वक्त, कभी भी, लेकिन सहवास के दौरान नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम सिचुएशनल है। वजह उसकी ये है कुमार साहब कि ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ से एल्बो से नीचे काट देता हूँ, 10 मर्तबा मेरे आर्म को ऊपर उठाऊंगा तो फोरआर्म एक मर्तबा भी उठेगा नहीं। तो अगर एक मर्तबा उठ गया तो आप मानने से इनकार कर देंगे कि मेरा हाथ टूटा हुआ था। What I want to tell you that if I have a hand like this, if I chop it off from here, if it falls on the ground, then even if I raise my arm 10 times, my forearm will not be raised even once. And if it is raised once, you will refuse to believe that my hand was detached. माने उसका इलाज एक या दूसरी तरह दवाइयों के बिगर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, हर केस में दवाई का लगना जरूरी नहीं है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, पार्टनर कोऑपरेशन, ये भी एक एंगल्स है। और आज के जमाने में जो पीडीएफआई आई हैं, सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, वर्डेनाफिल, बड़ी अच्छी और कारगर और रिलेटिवली सेफ दवाइयां हैं। उसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। माने नामर्दगी का इलाज नामुमकिन है, वो बात अब नहीं रही। सर, इसी सिलसिले में और जो क्वेश्चंस आए, लाइक वी हैव गॉट रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रिस्पांस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो कुछ एक क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन जिसको हमने क्लब किया है वो ये है कि क्या ये जो नामर्दी जो एक वर्ड आपने यूज किया, या इंद्री का न इरेक्ट होना या न खड़ा होना एक आम भाषा में जो बोला जाएगा, तो वो क्या किसी एज में लिमिटेड है, या फिर उसे हम ये मानेंगे कि अर्ली एज ग्रुप में देखा जाएगा कि थोड़ा दरमियाना सा जब एज ग्रुप में होगा तब होगा, या एल्डरली में कॉमन होगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि किस एज में ये सबसे ज्यादा जो है कॉमन है। एक तो आप समझ लीजिएगा साहब कि सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं। यहाँ मरते दम तक अगर आदमी चाहे तो सहवास कर सकता है बिना कोई डिफिकल्टी। मेरे यहाँ कम से कम 85 से 90 साल की उम्र के हर साल 8 से 10 मरीज रिफर्ड होते हैं, और इलाज मुमकिन है। आज के जमाने में इलाज नामुमकिन है ऐसी बात नहीं है, ऑप्शंस बहुत रहते हैं। जी, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा, मैंने यहाँ इलाज की बात नहीं की सर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या जिसको हमने नामर्दी का नाम दिया, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या किसी उम्र का मोहताज है? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उम्र का कोई जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो आप पूछ रहे हैं मतलब उसका जो अंदाज है एक अलग बताने का, वो ये रहेगा कि ये सच है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को लें तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 70 इयर्स के ऊपर 30% लोग रेगुलर सेक्स करते हैं एक। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से लें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि एक बड़ी भारी स्टडी, मैसेच्यूसेट्स मेल एजिंग स्टडी हुई, उसके अंदर ये पाया गया कि किसी भी लेवल की इंपोर्टेंस, मतलब थोड़ी ज्यादा, बीच की, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, was found in the population of about 40% till the age of 40 years and 70% till the age of 70 years, अगर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। और अगर सीवियर को देखें तो सीवियर जिसे बोलते हैं एक्चुअल इंपोर्टेंस, जिसमें बिल्कुल भी इरेक्शन ना हो रहा हो, वो देखी गई कि 5% 40 साल तक और 15% 70 साल तक। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है, इंपोर्टेंस का चांस
बढ़ता है, किंतु ऐसा नहीं है कि ज्यादा एज होने पे सेक्सुअली कम हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं यूएस की। इंडिया की स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा कभी नापी नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे कहीं ज्यादा होंगी। और अगर आप मुझसे सच पूछें, एक छोटी सी चीज जो मैं कभी कभी सोचता हूं, 60 साल के बाद में आदमी को शर्म आने लगती है किसी अपने दोस्त से भी बात करते हुए कि गुरु ये प्रॉब्लम पैदा हो गई, क्योंकि सबसे पहले दोस्त कहता है ये कोई उम्र है इस काम को करने की। तो ये एक अजीब सी धारणा हमारे देश में ये है कि एक बार बच्चे पैदा हो गए, आप गांव की तरफ जाइए तो सबसे पहले कहते हैं कि साहब बच्चे पैदा हो गए, अब ये किस काम का। और अगर आप उम्र में थोड़े ज्यादा हो गए और आपने किसी से सवाल पूछ लिया तो पूरा मोहल्ला आपकी तरफ हंसने लगेगा, गुरु आज के दिन भी इनका दिमाग यहीं चलता है, इस समय तो पूजा पाठ का टाइम है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, पर स्टैटिस्टिक्स जरूर ये कहते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, एक सर्वे हुआ, नेशनल हेल्थ सर्वे एंड सोशल लाइफ सर्वे, ये यूएस का एक बहुत बड़ा सर्वे, क्योंकि डेटा वहां का, इसलिए आपको बता रहा हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि अगर वो 50 से 60 साल के बीच के लोग को कंपेयर करें 18 से 30 साल के बीच के लोगों को, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम 3 गुना ज्यादा थी और 3 गुना डिजायर कम थी। मतलब उम्र के साथ में एक फर्क तो जरूर पड़ता है इसमें। देखो साहब, एक कैन आई कम इन? यस सर, यू आर ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू सर। बात यह है जो साहब ने कहा वो बिल्कुल 16 आना सच बात है, लेकिन मैं बताऊं ये जो सर्वेज रहते हैं उस पर इतना भरोसा नहीं किया जाए। एक इंटरनेशनल सर्वे आया था, मुझे इंडिया टुडे में से एक सवाल पूछा था, फिर डॉक्टर साहब वो लोगों ने सवाल पूछा था कि डू यू मास्टरबेट और नॉट, तो वो होता है इंडिया में कोई मास्टरबेट करता ही नहीं है। 98% ऑफ द पीपल डोंट मास्टरबेट, ओनली 2% मास्टरबेट। मैंने बोला भाई ये बात तो गलत है, आप जो कहते हैं वो सही नहीं, क्या सवाल पूछा था आपने? तो उन्होंने बोला हमने पूछा डू यू मास्टरबेट और नॉट। मैंने बोला अभी आप ये सवाल बदल के पूछिएगा कि व्हेन डिड यू मास्टरबेट लास्ट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 98% कोटेड दैट दे वर मास्टरबेटिंग। माने सर्वे लास्ट टाइम जब मिले थे डॉक्टर साहब, तो सर्वे ने उन्होंने मुझे बताया था एक कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर साहब आप सर्वे पर बहुत भरोसा मत करो, क्योंकि सर्वेज आर लाइक बिकिनीज, दे रिवील ओनली हाफ ट्रूथ। तो सर्वे पर इतना भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन फ्रीक्वेंसी में रिड्यूस विथ एज, बट डिजायर, इरेक्शन, एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड अचीव ऑर्गेज्म remains the same. में सर हम एक मैं ये सर आलोक सर, हाँ जी, हाँ मैं तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई हैं कि एक हम सुने ये जो इन सर्वेज को माने, और एक जो प्रैक्टिकल हमें जो नॉलेज दे रहे हैं उनको माने। तो अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम डॉक्टर अपूर्वा से बात करते हैं। सर इसी के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था कि एक्चुअली एक वर्ड आया था कि इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड 98% पीपल मास्टरबेट एंड 2% who are refused actually they are telling lie. That's a good one. So actually 100% people masturbate one or once in a life, but जरूर they. So, sir, we move to our next question to Sunil sir. Sunil sir, actually, what are the main causes of erectile dysfunction? First, and what is the role of the psychological factor? Because this is very important, as Kothari sir already stated, because many times it is situational, and many times patient come with me that भाई पहले तो बिल्कुल अच्छा था, अब हमारा खराब हो गया है, now I मतलब faces problem with that. So what are the causes and what is the role of the psychological factor? What to you, Sunil sir? See, the causes we can divide into different category. We could have vascular causes, neurological causes, hormonal causes, psychological causes. We can also have, I mean, these are the main causes. मतलब मोटा मोटा अगर आप कहेंगे तो या तो नसों की कमजोरी की वजह से है, या न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व्स की कमजोरी की वजह से है, या हार्मोन की कमजोरी की वजह से है, या साइकोलॉजिकल कारण है। मोटा मोटा 4 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसे अलग अलग लें, तो नसों की कमजोरी के कारण मेन कारण है
हिंदुस्तान में और दुनिया में अगर हम गौर से देखें। और इसका कारण अगर हम देखें तो जैसे हार्ट डिजीज होती है, बिल्कुल उसी रूप की ये वैस्कुलर प्रॉब्लम होती है। अगर हम साइज के हिसाब से जाएं तो एंडोथेलियल सेल दिल के अंदर भी हैं और एंडोथेलियल सेल पेनिस के अंदर भी हैं। एंडोथेलियल सेल दिल के अंदर का साइज करीब 3 से 4 मिलीमीटर होता है और पेनिस में 1 से 2 मिलीमीटर होता है। तो जिन जिन चीजों से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज हो गया, वहां वहां प्रॉब्लम पेनिस के अंदर भी आएगी। और यही नहीं, हाइपरलिपिडीमिया, साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब वो मरीज जो है वो सबसे पहले कहता है कि साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल की बीमारी तो नहीं होगी। उस भाई से सबसे पहले ये बताओ कि भैया 60% हाइपरलिपिडीमिया के मरीज के अंदर पेनिस के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार ये वैस्कुलर कॉजेज में पेनिस की प्रॉब्लम पहले आती है और 3 गुना चांस होता है कार्डियक प्रॉब्लम अगले 3 से 4 साल में आने की। तो एक तो हाइपरलिपिडीमिया हमने वैस्कुलर बात की। दूसरा, अगर हम न्यूरोलॉजिकल जाएं, मतलब नर्व्स के ऊपर जाएं, तो नर्व्स के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज की होती हैं वो नर्वस सिस्टम में भी जाती हैं और वैस्कुलर भी जाती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसमें रहती है। हार्मोनल प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। जैसे जैसे एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है, इच्छा और सेक्स दोनों कम होते हैं। बहुत बड़ा कारण तो नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर ये दोनों चीजें साथ आ रही हैं तो टेस्टोस्टेरोन चेक करना भी आवश्यक पड़ जाता है इस प्रॉब्लम के लिए। और दूसरी चीज डॉक्टर कोठारी ने शुरू में ही बड़ी खूबसूरत चीज कही, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। स्टैटिस्टिकली से ज्यादा, आप ही की बात कह रहा हूं स्टैटिस्टिक्स की सर, स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा हिंदुस्तान जैसे देश में साइकोलॉजिकल बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। एक बार भाई साहब एंजाइटी में इंटरकोर्स नहीं कर पाए, जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि इस सीढ़ी को कैसे चढ़ूंगा, सबसे मुश्किल सीढ़ी है। और अगर आपने कर लिया और ठीक नहीं हुआ और पत्नी मुस्कुरा दी कि ये तो बढ़िया नहीं था, तो अगली बार करते हुए फिर झंझट अपने मोल ले लिया। ये हो गई साहब एंजाइटी। दूसरा होता है गिल्ट। गिल्ट बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बचपन से समझा दिया जाता है आपने हस्तमैथुन किया तो मेरी सरकार ये जो आपका सफेद खून है ये लाल खून में बदल के और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो एक गिल्ट वो मौजूद के साथ मैंने हस्तमैथुन किया है। एक तीसरी हिंदुस्तान में बीमारी है जो बहुत बड़ी है, पब्लिक फोरम है इसलिए बोलता हूं, धात की बीमारी। मतलब ये तो ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी की बात समझ के आदमी ये सोचता है कि साहब मैं कमजोर हुए जा रहा हूं तो इरेक्शन नहीं होगी। तो हमारे देश में धात सिंड्रोम, मैस्टरबेशन एंड हस्तमैथुन सिंड्रोम और एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत मेजर कारण है इसका होने का इस देश के अंदर। तो ये बेसिक मोटे मोटे कारण हैं जिन वजह से होती है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं, ब्लड प्रेशर की दवा के साहब, आपके डिप्रेशन की दवा, आपके न्यूरोलॉजिकल दवा, कुछ दवा वजन कम करने की, कुछ इलिसिट ड्रग्स, ये सब भी बहुत डाउन करते हैं इरेक्शन को एंड डिजायर को। तो सिचुएशन ये है, मोटा मोटा अगर पब्लिक फोरम पे हो तो ये कारण होते हैं। On lighter note, Jindal sir, marriage is cause of erectile dysfunction or not? क्या चीज सर? मैरिज, शादी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण हो सकती है या नहीं? देखो भाई साहब, अगर जबरदस्ती शादी ना, अब पता नहीं, एक पेशेंट जरूर मुझे याद है, सर के पास तो हजारों पेशेंट था, लेकिन एक पेशेंट मेरे को जरूर याद है। वो हमेशा मुझसे कह रहा है, डॉक्टर साहब बाकी सब सही है, वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने में दिक्कत होती है। तो पता नहीं, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर शादी ही दिक्कत थी शायद। आपने जो बताया बहुत सही बताया जी, कि अक्सर केसेस के अंदर जी शादी तो बरकरार रहती है लेकिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये तो खैर सच है, ये तो सच है। ये एक बड़ी इसमें ऐसा है सर, ये एक बड़ा आसान है कि ब्रेन एंड नर्व स्टिमुलेट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट्स, हॉर्मोन्स रेगुलेट एंड लोकल टिश्यूज एंड मसल्स फैसिलिटेट्स। कहीं भी गड़बड़ हुई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। मैं तो 4 सवाल पूछता हूं सर, डिजायर, ख्वाहिश, इरेक्शन, एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड ऑर्गेज्म माने चरम अवस्था। ये 4 सवाल के अंदर मुझे 2 मिनट में उसका आंसर मिल जाता है कि गड़बड़ी कहां पर है।
and 95% of the cases you can diagnose just by history taking alone. सर एक बात कहूँ, जी, अगर कहीं शायरी की किताब लिखनी हो सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे तो कसम से सुभान अल्लाह ऐसी लिखेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता। आपका बोलने का अंदाज इतना प्यारा है कि कुछ मतलब इस सर एक बात बता दूं आपने, जी मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बहुत अच्छा, आपकी जरा नवाजी के लिए साहब। अच्छा सर, इसी सिलसिले को आगे You will be एक on a lighter note. सर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा, नहीं सर, आलोक सर कुछ बता रहे हैं। प्लीज सर। You will be surprised to know that कोठारी सर बोलिए प्लीज। हाँ जी, अभी जिंदल साहब ने गजल का जिक्र किया। The last lecture I gave in Delhi was sexuality and ghazals, and you will be surprised to know right from Mir Takir onwards, people have written ghazals on every expression of sexuality: masturbation, value of semen, sleep emission, homosexuality. बेहतरीन में बेहतरीन गजलें मीर तकमीर और फिराक गोरखपुरी ने लिखी है साहब। This just to tell you, अगर आप सुनना चाहें तो मुझे कहे तो मैं सुना सकता हूँ। नहीं सर, जरूर सुनाइए क्योंकि सुनने में अच्छा लगेगा। हाँ सर, सुनाओ। आपको मैं किस पे सुनना चाहेंगे? मास्टरबेशन पे सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए ना सर। जिस्मो जान तो एक हो जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जिस्मो जान बेकरार है मेरा, मुझको खुद इंतजार है मेरा। बड़ी बड़ी बेहतरीन गजल है, लेकिन द राइटर वॉज अ पोएट, ही वॉज अ बैचलर। कि जिस्मो जान बेकरार है मेरा, मुझको खुद इंतजार है मेरा। राग सा खुल रहा हूं मैं मुझ में, लम्हा लम्हा सितार है मेरा। तखलिया मैं खुद से मुखातिब हूं, मुझ पर जादू सवार है मेरा। मास्टरबेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। और सर जान निसार अख्तर जैसे आदमी जो है वो लिखते हैं ऑर्गेज्म के ऊपर कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर तुझको सुनाने के लिए हैं। अभी ऑर्गेज्म पर शेर आता है कि सोचो तो बड़ी चीज है तहजीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर इसी सिलसिले में मैं आगे पूछना चाहूंगा। हेलो जी सर, प्लीज कंटिन्यू। कोठारी सर जी अब जो प्रश्न आया है वो आया है कि अभी सभी ने, इवन जिंदल साहब ने भी यही बोला कि साइकोलॉजिकल फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपसे भी मुझे यही सुनने को मिला कि साइकोलॉजी अगर बंदे की अच्छी हो तो सेक्स या सेक्सुअल ऑर्गेज्म और डिजायर और वो जो चारों चीजें आपने हिस्ट्री के लिए बोली, उन चारों चीजों का जो है इस पर बहुत इफेक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर जी। या वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं क्या वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं? बिल्कुल इम्प्रूव किए जा सकते हैं सर। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अच्छा, आप प्रकाश को प्रकाश डालने की बात कर रहे हैं? जरूर। आलोक प्रकाश को बोल रहा है कि प्रकाश डालिए। अच्छी बात है साहब। देखिए, पहले इसके लिए थोड़ा समझना होगा कि आदमी की उज़्व तनासुल माने प्राइवेट पार्ट किस तरह उत्तेजित होता है। विचार से, ख्याल से, टेस्ट से, हाथ लगाने से दिमाग में सेक्स का सेंटर है। वो उत्तेजित होता है तो मैसेजेस करोड़ के जरिए नीचे जाते हैं। बराबर मैसेजेस आता है तो ये आगे खून का बहाव होता है और उज़्व तनासुल में माने पीनिस के अंदर उत्तेजना आती है। साथ में हार्मोन का और एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। तो पहले यहां से यहां आने के लिए मानसिक शांति की जरूरत है। वो आपको किससे प्रदान करेगी? दो चीजें, योगा, खास करके शवासन और भ्रामरी, ये दोनों प्राणायाम की चीजें आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। और दूसरा एक चीज है,
नीचे जाएंगे। ब्लड फ्लो डॉक्टर साहब ने बताया अभी 2 ट्यूब है, एक में से पानी जा रहा है, दूसरे में से शहद, हनी, मध। जल्दी कौन सा जाएगा? पानी जाएगा। उसका मतलब खून गाढ़ा हो गया कि नली छोटी हो गई तो इंद्रिय उठने में तकलीफ हो सकती है। उसकी वजह क्या? स्मोकिंग, स्कॉच, शुगर, डायबिटीज और स्ट्रेस। माने ये 4 एस बड़े एस के लिए बराबर नहीं है, तो इससे बच के चलिएगा। दूसरी एक चीज मेरे तजुर्बे में बहुत फायदा पहुंचाया है, जो मरीज मेरे पास आए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिंदल साहब जी सर, जिसकी उम्र 85-90 की थी, तो मैं उन्हें पूछता था कि कौन सी क्या बताइए, दे ऑल वर वेरी बिग वॉकर्स। माने एक नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि जिसके पांव चले उसका प्राइवेट पार्ट भी चले, तो वॉकिंग बहुत अच्छा है। तो ये चीजें लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, बेहद फायदा पहुंचा सकती है। दवाई, ज्यादातर जो दवाइयां होती है उसकी विपरीत असर भी होती है, लेकिन वो विपरीत असर को अगर हुई तो आप दवाई बदल के उसको दे सकते हैं। दूसरी चीज समझो, एक आदमी को इच्छा हुई लेकिन इंद्रिय में उत्तेजना आई, इट इज स्टिफ बट नॉट दैट स्टिफ। हाँ, आता है कड़कपन, लेकिन इतना नहीं कि मैं प्रवेश कर सकूं। ये एक कैच है। ऐसे सिचुएशन में जो PDE5 है वो भी बहुत फायदेमंद है। वो गोली समझो आपने एक ले ली, जिसे सिल्डेनाफिल साइट्रेट लेते हैं, टेडेलाफिल और वर्डेनाफिल। 1 घंटे पहले एक गोली मुंह में ले ली, 1 घंटे के बाद जोश थोड़ा बहुत बढ़ा तो उसमें तनासुल के अंदर अगर 25% इरेक्शन आ गया तो आपको 95% तक आराम से ले जाएगा। ये बहुत फायदेमंद है, तो आप गोली का इस्तेमाल कर सकते हो। PDE5 का पूरा बास्केट है, आप जो चाहे ले। हाँ, 24 घंटे में 1 बार लेनी चाहिए। जो लोग नाइट्रेट्स लेते हैं वो ये गोलियां न लें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। ये दवाइयां, ये काफी कारगर दवाइयां हैं। मैंने करीबन 15,000 मरीजों को दे चुका हूं मैं KEM हॉस्पिटल में। आज तक कोई आदमी को जानलेवा असर नहीं हुई डॉक्टर साहब। कोई आदमी का इंतकाल हो गया ऐसा मुझे याद। सर बहुत ही शानदार तरीके से आपने साइकोलॉजी तो इम्प्रूव की है, तो बहुत बढ़िया, सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। और एक जो मैंने कैच आपके इसमें लगा, जिसमें आपने बोला कि जिस आदमी के पैर चलते रहेंगे उसकी इंद्री भी चलती रहेगी, उसके तो प्राइवेट पार्ट भी चलेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो उसी पैर चलने के ऊपर जो हमारा अगला प्रश्न था कि मोटापे का क्या है इस इरेक्टाइल Alok, I want one question. Shri Jindal sir, if you can answer that. कि ये इंद्रियों का कड़कपन है, उसका कोई मेजरमेंट होता है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? मैं जवाब दे सकता हूँ आपको? जिंदल सर, आई जस्ट हैव कम बैक। क्या सवाल क्या था सर? वो इंद्रियों का जो कड़कपन होना चाहिए उसका कोई मेजरमेंट होता है कि इतना कड़क होना चाहिए, इतना होना चाहिए? पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये इतना कड़क है तो सफिशिएंट है? मतलब एक बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। वैसे तो स्टेजेस 1, 2, 3, 4 होती हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है उसका कि साहब आप छिला हुआ केला है या कड़क फुल केला है। अगर छिला हुआ केला है तो आप ये समझ लीजिए स्टेज 3 हो जाएगा, और अगर कड़क केला है तो इसका मतलब ग्रेड 4 हो जाएगा। अब चाहिए तो ग्रेड 4, कड़क केला चाहिए, छिला हुआ केला तो नहीं होगा। तो इस रूप में मरीज से पूछा जाए तो मालूम चल जाता है। और कभी कभी पेशेंट से आप पूछे ना कि रुपए में कितने पैसे आपको महसूस होता है कि कड़कपन है, तो 70% आदमी ने जो बताया है ना उसमें 10% घटा दीजिए, उतना कड़कपन आपको मिलेगा। ये फील किया है इन लोगों के साथ हमने। माने there are typically either it is a non-penetrable rigidity, number 2 is doubtful penetrable rigidity, और third is stiff enough for penetration. जो आपने बताया वही बिल्कुल। और जब भी डाउटफुल पेनिट्रेबल रिजिडिटी होती है वहां डायबिटीज मेलिटस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन
there is decline in erectile ability at all times. अगर वो बताए कि नहीं मॉर्निंग में बराबर होता है लेकिन सहवास के टाइम नहीं होता है, तो वो डायबिटीज उसका रीजन नहीं है. And that is the time where your PD5 can play a very good role. मैंने कम से कम 400-500 शादियां बचाई होगी डॉक्टर साहब KEM अस्पताल में, because the most common cause of divorce is sexual incompatibility. True. And सर, मैं people अपने क्वेश्चन पे अब दोबारा आना चाहूंगा. जी सर जी जी मैं उसी क्वेश्चन पे मैं दोबारा आना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि जिसके पैर चलेंगे उसकी इंद्री भी चलेगी. सर उसमें वजह ये जो मैंने आपको कहा, you see, चलने की वजह से hormones come into play. Hormones come into play. Oh, I'm sorry. आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है. जी हाँ, चलने की अब क्योंकि नहीं चलेंगे तो मोटापा आजकल आपको पता है एक नई बीमारी के तौर से उभर रहा है हमारे इस सोसाइटी में, जिसमें मोटापन बहुत ज्यादा पाया जाता है. तो क्या मोटापा एक कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का? सर सुनील सर, यस सर, सुनील सर. हाँ, देखिए मोटापा एक बहुत बड़ा कारण कुछ साइंटिफिक कारणों से है. एक तो सबसे बड़ी चीज कि मोटापे के अंदर जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन में तब्दील हो जाता है. तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये बढ़ जाता है, तो डिजायर के साथ साथ इरेक्शन में भी फर्क पड़ जाता है. एक नंबर 2 सही कहा. नंबर 2, आप अगर मोटापे को लिंक करें हाइपरटेंशन से, लिंक करें डायबिटीज से, लिंक करें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से, तो ये तीनों चीजें मोटापे के साथ में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम करती हैं. और अगर आप गौर से देखें, एक मोटे आदमी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होगा, डायबिटीज के उसको चांसेस होंगे, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया उसको होगा. तो जब दिल पे फर्क पड़ेगा तो मेरे हुजूर पेनिस पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है मोटापे का. और तीसरा एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मोटापे की, ये मोटापा बहुत जबरदस्त ऑक्सीडेशन करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिस कारण से चाहे वो इरेक्शन हो या कोई और चीज हो, ये जाकर एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और मोटापे के कारण ये प्रॉब्लम होती है. पर इंटरेस्टिंग चीज इसकी सबसे बड़ी क्या है कि मोटापा कम करने पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर होता है. तो अगर कोई आदमी 20% मोटापा कम कर लेता है अपना, तो चांसेस ये हैं बहुत मेजर एरिया में उसका इरेक्शन डिसफंक्शन बेटर हो जाएगा. तो क्या ये हम समझे जिंदाल सर कि जिसका हृदय मजबूत हो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा? क्या चीज? हार्ट मजबूत हो जी. देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है साहब, हार्ट डायरेक्टली रिलेटेड है. आदमी आपके पास में इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आया, वो सोचता है सिर्फ एक चीज खराब है, उसकी इंद्री. पर ट्रुथ ये है उसके पूरे शरीर में खराबी है. तभी जाके एक बैरोमीटर की तरह मालूम चल गया कि साहब ये तो टेम्परेचर का थर्मामीटर है. हमको मालूम चल गया कि इनके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है. 60% आदमी को अगर टेस्ट किया जाए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आता है तो उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई आएगी. 48% आदमी को अगर एंजियोग्राफी की जाए तो ये निकल के आएगा कि करीब करीब 40 से 48% के अंदर कोई कार्डियक डिजीज आएगी. और जो कार्डियक डिजीज के साथ में आते हैं 50% उनमें से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लोग होते हैं. तो इस रूप में अगर देखा जाए कि तो दिल तो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, नीरज साहब जैसा आपने कहा, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कार्डियक असेसमेंट in any patient who is obese or with a cardiac problem. And in fact, अगर हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आया है, आदमी की उम्र 40 या 50 से कम है, तो मेरी सरकार, the one thing which I always remember is this person needs to be sent for a cardiac checkup. Okay, sir, coming to the next question. एक्चुअली सर अभी क्या है, हम लोग फिल्मों में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, सो कॉल्ड द मेट्रोसेक्सुअल मैन, दोज हु स्मोक, दोज जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनको ये दिखाया जाता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फीमेल्स आर अट्रैक्टेड टू देम एंड दे विल बी, दिस इज सपोज कि दे विल बी वेरी गुड ऑन पेट. मेरे को यही जानना है सर, इज द सब्सटेंस अब्यूज और दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज इम्प्रूव्ड द
इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और ये एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म में उसमें वो कॉज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। ओवर टू यू सुनील सर। देखिए साहब, जितनी इलिसिट ड्रग्स हैं और जितना एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, whether it is heroin, whether it is cocaine, whether it is smoking, whether it is too much of alcohol, whether the person is taking anabolic steroids for bodybuilding, they all are detrimental towards desire as well as ultimately towards erection. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था सर डॉक्टर कोठारी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, उस जमाने में वो एक ऐड आया करता था मालब्रो का, जिसमें एक काउबॉय बैठा होता था, एक मालब्रो लगी होती थी और एक रस्सी ना, वो काउबॉय की एक रस्सी यहाँ पे घूमी होती थी। हमारे कॉलेज के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस जमाने में बाहर से आती थी, ब्लैक में मिलती थी, बाहर एक पंसारी था, सबसे महंगी सिगरेट मालब्रो मिलती थी और हर आदमी सबसे पहले मालब्रो खरीदता था। और वाकई में कुछ तो हमारे दोस्त ऐसे थे कि 2 बार पीते थे कि भाई एक बार देख ली उसे बुझा ले, दूसरी बार कोई देख ले उसे। बाकी अपना वो विल्स की नेवी कट होती थी सर छोटी वाली, वो पिया करते थे। सर मैं आपको सच कहूं, इन एड्स ने हालत ये कर दी कि वो जो माचो आदमी जाया करता था ना घोड़े पे, सिगरेट स्मोकिंग लिटरली ऐसा करता कि उसके नीचे से वो सब घोड़े वो सब उतार देता है और लिटरली उसे बेचारे को एक चंगू सा बना देता है। तो इसलिए एक बात आपको सच कहूं, जो स्मोक करते हैं एक मेहरबानी करिए, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। स्मोक करने से कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि आज के दिन में तो वाकई भी औरतों को भी पसंद नहीं, वो जमाना और हुआ करता था। आजकल स्मोक करता हुआ आदमी आए तो सबसे पहले कहती है प्लीज डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट मी। तो इसलिए सर द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड स्मोकिंग हैज गॉन डाउन, बट द प्रॉब्लम इज गुटखा। Nowadays, gutka is one of the major problems in our country, and the tobacco, because of nicotine, gives the same problem. Unfortunately, gutka is something where if the son is having gutka, if the son is having gutka, the father would say, "Do dane mujhe bhi de de beta." While earlier, a son never used to smoke in front of his father. So the comfort with which gutka has come up, gutka is one of the major reasons today in our area for erectile dysfunction. एंड अल्कोहल का क्या रिलेशन है सर? हाँ अल्कोहल तो है ही सर, अल्कोहल तो ज्यादा क्वांटिटी में है ही, लेकिन एक बात कहूं सर अल्कोहल की, हम पहले पढ़ा करते थे इट इंक्रीजेस द डिजायर बट डिक्रीजेस द परफॉर्मेंस। तो अगर जो हैवी ड्रिंकर है सर उसको तो मेजर प्रॉब्लम हो ही जाती है। जो कभी कभी ड्रिंक करता है उसकी इनिबिशन निकल जाती है, इसलिए उसे लगता है डिजायर बढ़ गई, बट अल्टीमेटली अल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में सारी चीजें वही करती है जो स्मोकिंग करती है ज्यादा क्वांटिटी में। सर शेक्सपियर ने एक अच्छा सेंटेंस बताया है जी, शेक्सपियर ने बड़ा अच्छा सेंटेंस बताया सर जी। अपने मैकबेथ के अंदर उसने अल्कोहल के बारे में लिखा है कि इट प्रोवोक्स द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। माने ये कामेच्छा तो जगाता है लेकिन काम को बिगाड़ता है, एंड इट इज एबंडेंटली ट्रू वेदर इट्स फॉर ड्रग्स और फॉर अल्कोहल। So that means कि जो ये हकीकत क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन पे ये होगा कि कुछ भी इस तरह की। हाँ सर प्लीज बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप प्लीज आप बोलिए। हकीकत नहीं, आपकी सूरत को देख के मुझे एक शेर याद आ गया इस लोग कहते हैं कि मैं शराब पी रहा हूं और उसकी वजह से मैं उछल रहा हूं, ये मेरे डिजायर बढ़ रहे हैं, लेकिन शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि मेरा ज़र्फ है, माने ये मेरी मस्ती है जिसने मचाई है सब हलचल, ये मेरी मस्ती है जिसने मचाई है सब हलचल, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। सुभान अल्लाह सर, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सर ये साहब मतलब है, आपने छेड़ दिया यार, ये जिंदल साहब ने छेड़ती की मेरी। तो सर कहने का ये मतलब है कि जितने भी ये इलिसिट ड्रग्स हैं ये किसी भी तरह से हमारे काम के नहीं है, अगर हम काम को इस अपनी उसमें देखते हैं तो इसी सिलसिले में अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अगले क्वेश्चंस में जो है हमारे जितने भी श्रोतागण हैं या जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष से जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खाकर, जिनको जो नेचुरल वे है, या कुछ ऐसे नेचुरल वेज हैं जिससे ये काम इच्छा बढ़ाई जाए या काम को बढ़ाया जाए, या फिर
कुछ ऐसी खाकर, कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें खाकर इस चीज को बढ़ाया जाए, या इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंद्री की शक्ति को या उस नामर्दी को जिसको बोला जाएगा, क्या उसे बढ़ाने का कुछ नेचुरल तरीके हैं हमारी जिंदगी में जिसे हम धारण कर सकें? सुनील सर। देखिए, सबसे जरूरी चीज तो सर ने सबसे पहले बताई, वॉकिंग। अब जब मैं सुबह घूमने जाऊंगा, सबसे पहले देखूंगा कौन कौन से 70 साल के ऊपर के आदमी जो तेजी से वॉक रेगुलरली करते हैं। मुझे लगता है कल बहुत मिलने वाले हैं। पक्की बात है, कल मैं सबसे मिलूंगा और सबको नमस्ते, कल सबको झुक के नमस्ते कहूंगा सर जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी सर। वॉकिंग लीड्स टू excess of blood flow in the mind. It tranquils the mind. That's what Ayurveda says. Correct. Moreover, it increases the flow of blood in the private part and every organ of the body. Otherwise, you can't get it up. Moreover, as you know it better, that it also rolls up the hormones. आप हार्मोन की गोली खाएंगे, लेकिन अगर चलेंगे नहीं तो इतना फायदा नहीं करती सर। That's what. परफेक्ट, बिल्कुल तो माने perfect, sir. फिर भी आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा हाँ, सर। तो एक तो देखिए, वॉकिंग, एक्सरसाइज, लॉस ऑफ वेट, नॉर्मल वेट, बीइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, आई एम सेइंग फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, हरी सब्जी ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट कम, जितनी चीजें हार्ट के लिए हम करते हैं नॉर्मली वो सारी चीजें हम करें। फल कौन से खाएं? जिनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो। These are those fruits which have antioxidants. If we keep a normal weight, if we exercise, अगर हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स हाई है तो ये एक नेचुरल तरीका है अपने को फिट ही नहीं करने का। योग, जैसे सर ने कहा, बहुत से लोग शीर्षासन करते हैं फॉर दैट मैटर। एंड मैं अभी एक जगह पढ़ रहा था तो मैं अभी टीवी चलते चलते मैंने रामदेव का एक चैनल देखा, उन्होंने जितने भी प्राणायाम होते हैं ये बहुत अच्छे बताए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जेनिटल एरिया। कुछ पेरिनियल एक्सरसाइजेज हैं जो नॉर्मली फीमेल्स के लिए की जाती हैं। मैंने पर्सनली जिन मेल्स को भी बताया है कीगल टाइप के एक्सरसाइज करने को, दोज पीपल हैव हैड आई वुड से बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रेमेच्योर इजैकुलेशन एज वेल एज इरेक्शन के लिए। ये तो नेचुरल हो गई। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटी जगह जगह आई हैं इस दुनिया में। मैं एक दिन बहुत सुंदर सा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब हिंदुस्तान में तो अश्वगंधा और बहुत सारी चीजें आई हैं, योहिम्बिन आई, जिनसेंग आई, शिलाजीत आई, ये सब यूज हुई हैं। शिलाजीत वेरी कॉमन वेरी कॉमन। अब शिलाजीत असली कहाँ मिलती है? सच पूछे तो किसी भी काले पत्थर को तोड़ के उसे शिलाजीत है तो शिला देखिए और जीत जाएंगे तो फिर ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी तो यही है। बट ट्रूथ इज दैट इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा मिश्रण बहुत समय से चला है। सर, आई वाज रीडिंग अ ब्यूटीफुल आर्टिकल वेयर डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर इट इज natural treatment was made. Like in Singapore and China, mainly Singapore, they started giving snake meat, cobra meat. Cobra meat was something which was supposed to be the biggest aphrodisiac. एंड कोबरा मीट ढूंढने में इतना टाइम लगा देता होगा आदमी कि जब फाइनली कोबरा मीट खाता होगा सर तो कहता हो गुरु फायदा तो इससे होना चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है ना। द सेकेंड थिंग, ऐसी चाइना ढूंढ के लाया सर, चाइनीज ढूंढ के लाए, कमाल की चीज चाइनीज ढूंढ के लाए सर। एक तो टाइगर की हड्डियां, टाइगर बोन्स, और टाइगर बोन्स के साथ में सर वो कुछ बिल्कुल नायाब से जानवर थे, उनके पेनिस का सूप उन्होंने तैयार किया। तो एक्चुअली दिस इज ऑल लिटरेचर, आई मीन दीज वर ऑल रिपोर्टेड आर्टिकल्स पब्लिश्ड। सो व्हेन आई रेड दोज आर्टिकल्स आई रियलाइज्ड दैट ओवर द पास्ट, जिसे कहते हैं ना सर सबसे नायाब चीजें विच वर नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इफ अ पर्सन गॉट देम, जैसे हमारे भाषा में बोलते हैं ना कि साहब चील का यूरिन अगर किसी को मिल जाए तो, उसी तरह से ये कहानी इस तरह की चली। तो ऐसे एफ्रोडिजियक्स बहुत सारे हैं, बट अल्टीमेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट ठीक होना, ये सब चीजें बड़ी जरूरी। जो दिल के लिए अच्छा है वो पेनिस के लिए भी अच्छा है। प्रकाश सर, हाँ जी, क्या आप आपके कुछ कमेंट सुनना चाहेंगे? ये नेचुरल चीजें जो हैं खाने पीने की, क्या कुछ खास ऐसे कॉन्डिमेंट्स हैं, मसाले हैं
या कुछ खास ऐसी चीज है जो खाने में या कुछ करने में या कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारे श्रोतागण सुन सकें और जिनको इस चीज से कुछ और लाभ हो सके? जिंदल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, पर कुछ हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। एक तो खुराक, डाइट के अंदर 2 चीज आप ऐड करें। एक तो उड़द की दाल। उड़द कंटेन्स मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन। जो ब्लैक उड़द होते हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहते हैं। तो मैं बिफोर गिविंग टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट, आई वुड ऑलवेज गिव अ फेयर ट्रायल ऑफ उड़द की दाल ट्वाइस इन अ वीक। लहसुन और हींग का तड़का देके गाय के घी में 2 कटोरी खाने का बताऊंगा। दैट has been used since age old, and Ayurveda also emphasizes, and I have also seen that it boosts up testosterone without any doubts. Another thing is methi, that is fenugreek, but fenugreek in a solid form. उसको पीस के नहीं, उसके दाने रात को सोते समय अगर आप 1 चमची पूरे निगल जाओ तो वो वायु और पित्त खींच डालते हैं, and that also increases testosterone. There are some companies which have made even the powders of methi and they are giving it to people. But methi should be taken raw in the seed form. So these are the 2 things which I would add to Dr. Jindal. अभी जो उन्होंने बताया प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम सही तरीके से करना चाहिए। समझो मैं यहाँ बैठा हूं, एक तो पद्मासन में करना चाहिए, and when you take अनुलोम विलोम, it has to be in the ratio of 1:4:2. Means सांस लो 5 सेकंड, रोको 20 सेकंड और रेचक 10 सेकंड. It has to be in the ratio of 1:4:2. And when you are doing it, when you are doing पूरक, see that आप मूल बंद करो, टॉयलेट की जगह बंद करो, जो अपना पीसी एक्सरसाइज हो जाएगी. उसके बाद जब भी आप रोक रहे हो तभी जालंधर बंद करो, और जब भी आप बाहर निकाल रहे हो, रेचक कर रहे हो, तभी उड़ियान बंद करो. ये 3 साथ में करोगे तो आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर होगा. और प्राणायाम में सांस लेके फिर सांस रोकना जरूरी है, तभी प्राण का आयाम होता है, वरना प्राण का आयाम नहीं होता है. वरना क्या होता है, सांस लिया, सांस निकाल लिया, ये तो साइकिल के जैसे ट्यूब से हवा भरी और दूसरी निकाल दी, वो नहीं चलता है. इट हैज टू बी इन द रेशियो ऑफ 1:4:2. सो दीज आर द 2 थिंग्स which will add and which will help people at large. दूसरा, खाने की कुछ चीजें हैं. अगर आप खाते हो, खाना खाते हो, तो see that you don't take too much of water along with, और immediately after food बहुत पानी मत पियो, उससे तुम्हारा डाइजेशन वीक हो जाएगा, फिर एसिमिलेशन का प्रॉब्लम होगा, and then it will affect everywhere, whether it is testosterone or any other hormones. जब आप दवाइयां लेते हैं, समझो साइकोट्रोपिक मेडिसिन लेते हैं, तो कभी कभार आपका प्रोलैक्टिन भी चेक करवाया करो. अगर प्रोलैक्टिन आपका बढ़ जाएगा तो भी सेक्स पर विपरीत असर पड़ती है. तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, बिकॉज ये ब्रांच ऐसी है कि उसमें यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, हर ब्रांच जुड़ी हुई है. एक ही स्पेशलिटी में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई मीन अ सेक्सोलॉजिस्ट कैन बी अ highly professional person or he could turn out to be an explosive quack. और जो उन्होंने बताया वो कि चाइना के अंदर ये दवाइयां बनती है, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिंदल. ये मैन्युफैक्चर चाइना में ही होती है, लेकिन वो बड़े शाणे लोग हैं. वो सर चाइना वाले लेते नहीं है, वो बेचते जापानीज. तो वो जापानीज खाते हैं, चाइना में एक आदमी खाते नहीं साले. ये बड़े बदमाश लोग हैं. मतलब सर ये चाइनीज क्या सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी करते हैं औरों के लिए. हाँ, नहीं, मैंने एक चाइनीज, सर मुझे दी सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ एशिया का अवार्ड चाइना में दिया था. दैट वाज समथिंग, आई मीन आई वाज आल्सो सरप्राइज. लेकिन मैंने बोला ये आप जिनसेंग बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो आप लेते नहीं हो? बोलते नहीं, हम लोग बनाते हैं, बेचते हैं जापान वाले को, मतलब वो खाते हुए है. बाय एंड लार्ज इफ अ टेबलेट इज गिवन, sir, it's a picture of a horse or bull that works, not the tablet. If an injection is given, it's a prick of the needle.
that works and not the content of the syringe. As a urologist, the sex tonics are nothing but exploitation of the desperate by the ignorant. By the मैं आपके गजल के स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ. आपको देखता हूँ तो मुझे गजल याद आती है. सर आपको सच कहूँ आप ऐसे कैटलिस्ट हैं शायरी के और इस अंदाज के कि मैं खुद आपको देख के इस अंदाज में आ गया, वरना वाकई अंग्रेजी में लेक्चर ले रहा होता है ना. नहीं सर. Really? Okay, sir, moving to the next question. What is the best treatment of ED? Now, we have till now we are taking all the things, lifestyle modification, reduce weight, the natural way. I think now we have to taken up the pharmacotherapy. Sir, so over to you, Jindal sir. What is the best treatment of erectile dysfunction? And it has a lot of tail question. First, I would like to ask you this question. Then we will pick up the other question. See, the question from a person I can understand is the best treatment, but the best treatment for everybody can be different. So for somebody to say ki what is the best treatment is very difficult. So the most important thing is, and the best thing to do for anybody who has a problem is to go to a trained person who can take a good history, who can do a good examination, who can do a good, I would say, diagnostic testing to know exactly what is the reason for his ED. Number one, is it psychological or is it in any case organic? If organic, what is the reason for the organic? And then plan what is the treatment to be given, whether the treatment needs to be given through medicines, through psychotherapy, whether this person needs, for that matter, anything else apart from medicines, what other organ or what other part of the human body has been affected by a disease just like this, so that could be treated, taken care of. What are the lifestyle modifications which are needed? With this, if the pharmacotherapy comes, then the most popular today are the PGE5 inhibitors, if you could say it for a medicine point of view. But then how to be given to this patient, why it should be given is important. Now, the biggest problem which we are facing today is, this is the only country probably in the world where the PDE5s are so cheap, over the counter available. In fact, मैं आपको सच कहूँ, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी. एक दिन मैं पान खाने गया, तो जब मैं पान खाने गया और मैं रुका वहाँ पर, तो मैंने पान लिया, तो मैंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी. एक तो उसके यहाँ पान के साथ में कॉन्डम्स दुनिया के सबसे बढ़िया लगे हुए थे किनारे. और सर दूसरी मजेदार बात, उसके पास में सारी सिडनाफिल थी. तो बात करते करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हुजूर एक बात बताओ भाई, तुम बाके भाई एक बात बताओ, ये जो तुम पान बनाते हो इसमें बेस्ट पान कौन सा होता है? बोला जी कुछ लोग गोली अलग से ले जाते हैं और एक आध में तो मैं डाल ही देता हूँ. तो then I realized that the over-counter sale of PDE5s have made it more than a medicine, an aphrodisiac. And the question is, just like you asked the question, which is the best treatment, then the best treatment is this. But probably one thing which has been magic in terms of medicines is the PDE5. Now, sir, along with this question, which PDE5 is the best? First thing. Secondly, we have a lot of questions, like one from Gujarat. He is asking, which drug is best, Vardenafil or Tadalafil? As far as the drug is concerned, yeah. See, both have been found to be extremely efficacious. Both have not too many side effects, but there are four differences between both these drugs. Number one is the time of onset of action. Sildenafil needs the drug to be taken once about half an hour, 60 minutes before the drug for maximum action. Tadalafil needs about 120 minutes for the maximum action, so the action takes place even in 1 hour. First. Second thing is, the half-life of the drug is such that the half-life of Tadalafil is very long. So if a person takes it, it is very long-acting. And Sildenafil is short-acting. So what happens if a person needs to take it as a pill which he wants to take before intercourse, I mean for a weekend or for a party, then Sildenafil probably would be the answer for him. But if a man is impotent and needs to take it for a long time regularly, and
he does not know when it would be that he would have to have intercourse. He may have the time or not have the time. Then tadalafil probably would be the answer as far as a drug is concerned. Sir, what about the vardenafil? Vardenafil is not very freely available. It's expensive, and in this country, let me be honest with you, I have not used much of Vardenafil. But Vardenafil, whenever I have used, is as good as Sildenafil. And both the drugs are not to be taken with a fatty meal, while tadalafil can be taken with a fatty meal. Okay. Sir, what if a person is taking Now the question. Sildenafil as well as vardenafil in combination, can be used? I beg your pardon? Tadalafil and vardenafil can be used in a combined form. See, in a few people, just please understand, in a few people who are having tadalafil regular for a long time in a low dose, in them, if in case sildenafil or vardenafil is given just before intercourse to this particular group which is not responding to tadalafil only, just like Dr. Kothari said in diabetics, where he said that desire तो बहुत है पर पूरा काम होता नहीं, और होता है तब भी थोड़ा अधूरा सा रह जाता है. These are the people in which you can give them a shot before they want to go, a tablet before they want to go if they are regularly on tadalafil. This is the class of people. Now, इसमें मैं ये एक और चीज थी, जैसे आपने बड़ा अच्छा सा बताया कि एक पान वाले के पास भी ये सारी फिल्स मौजूद थी जो हम प्रिस्क्राइब करते हुए भी सोचते हैं, तो वो कितना इजीली प्रिस्क्राइब करता है. लेकिन इसी चीज में और क्वेश्चंस जो आए हैं इवन तमिलनाडु से, कर्नाटक से, कुछ हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, वो भी ये पूछना चाहते हैं कि जो व्याग्रा की वजह से जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं, नेजल स्टफिनेस है, टैकीकार्डिया है, बहुत तेज धड़कन बढ़ जाती है, वो जरूर हमसे आकर पूछते हैं अगले दिन. तो क्या इनको ओवरकम करने के लिए कुछ और साधन कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं, या कुछ डोज कम कर सकते हैं? इस पे कुछ प्रकाश डालिए. देखिए, ये सारे साइड इफेक्ट्स दोनों ड्रग्स के करीब एक से हैं, मौजूदा हैं और सबको पता है. और सबको पता है. अब ये साइड इफेक्ट्स डोज रिलेटेड है एक चीज, लेकिन अगर 25 मिलीग्राम काम नहीं करेगी और उसे 50 मिलीग्राम लेनी है, क्योंकि 25 मिलीग्राम काम नहीं करेगी और 50 मिलीग्राम लेनी है, तो 50 मिलीग्राम ही काम करेगी और वो साइड इफेक्ट बरकरार रहेंगे. कोई ऐसी दवा तो है नहीं. एक आध पेशेंट ने मुझे आके बताया कि साहब वो कॉम्बीफ्लैम की गोली पहले खाते हैं 6 घंटे पहले, और उसके बाद में tadalafil ये sildenafil खाते हैं. अब now the fact remains that the only thing they could do is change the drug. They could, at times it so happens that the person may be having headache with sildenafil, but he may not have headache with tadalafil. But then all this needs to be done under medical supervision. It is not that the पानवाला will tell me ये बेस्ट चल रही है जी आजकल. What does a chemist or a पानवाला do? एक सिंपल काम करते हैं. When the person goes to them and says, साहब आजकल ये कोरोना की बेस्ट दवा कौन सी चल रही है, तो he says ये बेस्ट चल रही है. This was told to me by a patient. The patient was taking the patient who came to me for something else. I asked him, what are you taking? So he said, sir 3 महीने तक तो मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली, आजकल आइवरमेक्टिन ले रहा हूँ. So I asked him, how are you taking this drug as a protection? ये ऐसे थोड़ी कि कोई भी खा लेगा. बोला नहीं जी, वो हमारा केमिस्ट हमारा बड़ा खास दोस्त है, उसने कहा लेटेस्ट ये चल रही है, बेस्ट ये चल रही है आज के दिन में. So the question is, most of the people are taking PDE5s with this attitude, and therefore they're having problems, and it doesn't work in a majority of people because they're not taking it with the time gap. मतलब their situation is कि उन्होंने फौरन एक घूंट पानी से पिया और उसके बाद मैं कहा चलो जी अब काम पे लग जाते हैं. ये एक बहुत बड़ा कारण है. तो it is important for us to realize all these things, and I would like to give this message to all the people over here. Please do not take these drugs without medical advice. Nowhere in the world would they be used without medical advice. Sir, So, as per your version, yes sir. awareness Sir, can I regarding these kind of medication is Look, very sir. important. Yes, sir. प्रकाश सर कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर कोठारी कुछ बोलना चाहते हैं. I have given these medicines, sildenafil, tadalafil, and vardenafil,
to hundreds of patients. The most common side effect with sildenafil is headache. अगर headache हुआ तो I will change it to tadalafil. Where there is no headache, but body ache is the common side effect. Among all, I found vardenafil more potent, at the same time with less side effects. But sir, interesting thing is that since 3 years, there are films which are available. You take that sildenafil on the tongue, it gets dissolved in 1 minute, and the action starts within 10 minutes. So it doesn't go in the stomach at all. So food का indigestion का कि कम खाया वो तो problem आता नहीं है. It doesn't go to the liver, so it bypasses liver, and effect is straight. So by using film, it is cheaper, there is no side effect, it is faster, that's why it is better. So we all should prescribe films rather than tablets if you look at the patient. And these films are freely available. Why not? I mean, we look at the patient's safety. If at all I were to give my patient, I would give a film. I will not give a tablet because it bypasses liver. डायबिटीज वाला पेशेंट होगा, ऐसा ही सर लीवर वूवर तो उसका थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हुआ होगा, ये तो सीधा ही मुंह में से एब्सॉर्ब हो जाता है. सेफ. आई वुड से दैट वी ऑल डॉक्टर्स शुड give the best medicine to our patient, and in my view this is the safest. The films would be the safest. अवेलेबल है सर इंडिया में? अवेलेबल है सर, पूरी अवेलेबल है. नहीं तो अवेलेबल तो अगर डॉक्टर जादव नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा, एंड डॉक्टर जिंदल नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा. पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा, आपने पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर रहा है तो ये सर जो आपने बताया तो कोई दिक्कत नहीं. एक्चुअली सर ये जो फील्ड्स हैं, प्रकाश सर आपने बताया जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी. प्रकाश सर ने बोला टैबलेट्स नहीं लेनी है तो क्या लेना है, वो आप क्या बोल रहे हैं प्लीज रिपीट करेंगे. फिर वो फिल्म आती है 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम, और जैसे अपनी टैबलेट आती है ना टेडेलाफिल और वर्डेनाफिल की 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ऐसी एक फिल्म आती है सर. वो फिल्म जीप पे ऊपर रख दी सर, ये कागज का पत्ता है ना, ऐसी फिल्म आती है, इतनी छोटी फिल्म, पिंक और ब्लू कलर की है, यहाँ रख दी, 1 मिनट में घुल गया, बात खत्म हो गई. सर फिल्म बहुत फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्रीली अवेलेबल नहीं है हमारे पूरे एरियाज में और कंट्री में. डॉक्टर कोठारी जहां बैठेंगे और फिल्म लिखनी शुरू कर नहीं सर, नहीं डॉक्टर जिंदल, अगर आप लिखोगे, अगर if there is a safer alternative available, why compromise? For our patients, you will always look for the betterment of the patient. I mean, I would prefer the best for my clients, sir. And sir, safety will be the most important thing. That is sparing the liver. Effect is faster. क्या चाहिए आपको और? Free availability of companies और मेरे ख्याल से free availability of the drug to companies so that it is available to everybody at a cheaper rate, sir. No, but sir, more companies should make it, na. More companies should make the film. बात खत्म हो गई. इसीलिए instead of making tablet film बताने में क्या होता है? सर जिंदल सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसीलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे फेसबुक से यही क्वेश्चन आया कि टैबलेट्स मिल जाती हैं, ठीक है, बट ये फिल्म्स कहाँ मिलती हैं, वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. मैं रूरल एरिया को बिलोंग करता हूँ, अगेन जिंदल सर भी काफी उनके आसपास काफी रूरल एरिया है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, ये जरूर माना जा सकता है. आपकी बात सही है सर. नहीं, you see, people may not have a good network. But if something which is better for our clients, I think you will agree with me, doctor, that you must use that. सर अगर सब डॉक्टर्स लिखना शुरू करें फिल्म को, it will be available. I think even सीधी बात है, सीधी बात. Of course, why not? Absolutely. तो ये है हमारे लिखने के ऊपर कि हम किस तरह से इसको प्रोपगेट करते हैं, किस तरह से हम अपने जो है पेशेंट्स के लिए बेस्ट करते हैं. तो हमारे लिए मैसेज, टेक होम मैसेज यही जाता है कि क्यों ना हम टैबलेट्स की जगह फिल्म्स पर जो है अपनी राइटिंग्स लिखें,
जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स का भला हो सके। ठीक सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपूर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Coming to next question, sir. We just Facebook से एक question आया from one of viewer. I am 40-year-old. I am suffering from high blood pressure. I am suffering from the ED, erectile dysfunction. When I take Tadalafil, erection happens for a long time. During penetration, penis become flaccid again every time. What to do? Please repeat the question. The 40-year-old hypertensive patient is suffering from erectile dysfunction, and the complaint is he always take Tadalafil. After taking Tadalafil, the erection happens for a long time. There is no problem in erection. But during penetration, the penis become flaccid every time. After penetration or before penetration? During penetration. That means inside the vagina it becomes flaccid. Flaccid, yes, sir. Sir, with your permission, Dr. Jindal, can I reply? Of course, sir. Thank you. Two things. Any distraction. Suppose if he is putting it inside, if there is a knock on the door, he will lose the erection. And second, sir, if the vagina is too loose, too lax, then this thing will happen. Because a simple example, if at all you want to masturbate, the hand has to be snug. You can't masturbate with the loose hand. Similarly, if the vagina is loose, you will not be able to sustain the erection. So probably if you change the position to woman's legs cross position, you will solve the problem immediately, and later on, let her do Kegel's exercises as advised by Dr. Jindal, and if necessary, do a vaginal repair and the problem is resolved. We used to get this very, very commonly, especially from the obstetric ward. ये पेशेंट्स बहुत आते थे जो आपने फरमाया कि डिजायर है, इरेक्शन है, able to penetrate, but we lose the erection. This is because of the laxity of vagina is one of the most common causes. Thank you, sir. And just like Sarah said, the laxity of the vagina, and the other thing is the anxiety of the person that he probably will have a premature ejaculation. These are the men who actually have this crazy thing in their mind because of anxiety, that they are able to penetrate, but they lose the erection during that time. This what he said is that he has got desire, he gets erection, but loses the erection. He doesn't culminate into the climax. Yes. So it is not early orgasm or premature ejaculation. It just loses the erection. It's still the erectile dysfunction. Yes. And this, sir, I have seen in a lot of patients patients who psychologically feel they're going to discharge soon. So Sir, very common, more common than even common cold. You require common sense to solve it. Unfortunately, it's not all that common. Not all that common. Correct, sir. सर, अब जैसे फिल्म्स की बात हो रही थी और टैबलेट्स की बात हो रही थी, different types of tablets we have got. So can we like combine the tablets? Can we, like, if patient is having sildenafil and he is not responding sildenafil, so can we go for Tadalafil, the next tablet, the same setting, or what do you say regarding mixing the tablets? It's a very interesting thing because there is a specific thing for us to understand. We would give sildenafil to a person who wants to take it drug not on a regular basis, but on a basis on which he could have sex after having that drug 1.5 or 2 hours after that, basically 1 hour after that. But Tadalafil we would give as a regular dose to those people who want to feel normal, to be able to have sex whenever they want to. So this is the differentiation between the two drugs. One. The other thing is that if we give a low dose Tadalafil to a lot of people, बहुत से लोगों को अगर लो डोज Tadalafil देते हैं हम, तो उसके ऊपर सिडनाफिल लेने से फायदा हो सकता है अगर उनको लूजनेस होती है या उनका इरेक्शन इस तरह का नहीं होता कि पेनिट्रेट कर सकें, मतलब चाह उमंग बहुत, पर एंड में कहानी में ये होता है कि साहब सब कुछ चाह है, उमंग है, लेकिन रफ्तार नहीं बना पा रहे, मतलब मैं उस तरह से अगर आपको रखूं, उसके लिए वहां पर वो ड्रग का एडिशन जरूरी है. हाँ,
कभी कभी पेशेंट को साइड इफेक्ट सपोजिंग सिडनाफिल से हेडेक बहुत तेज होता है, तो आप ड्रग को चेंज करके टेडाइलोफिल दे सकते हैं। टेडाइलोफिल से कोई दिक्कत है तो सिडनाफिल दे सकते हैं, पर ये सब मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। मतलब एक पब्लिक फोरम पे अगर मैं आज बात कर रहा हूँ, सर बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम सब मिले हुए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक बात समझिएगा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों के पास जाना जरूरी है। रीजन ये है, ये खांसी जुकाम की दवा नहीं है। दिस इज अ वेरी specific treatment. Outside our country, these drugs will, if the prescription is for 4 tablets, only 4 tablets will be given to him. So it is very important it should be given like that. तो यानी कि सबसे जो मैं पहले भी ऐड करना चाह रहा था कि इट इज नॉट ओनली गिविंग और प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, बट इट इज मेकिंग द योर पेशेंट्स कंप्लीटली अवेयर ऑफ द मेडिकेशन एंड हाउ टू टेक एंड व्हेन टू टेक and after, before sex, how much time before sex you have to take. This whole awareness has to be made by us sitting on this public forum to the patients coming to Yes. us. Am I right, Prakash sir? Yes. Absolutely, sir. Absolutely, sir. Absolutely. And another thing is, actually these patients need to be investigated for so many serious things which may be going up in their bodies. I mean, please understand, erectile dysfunction for the patient is very simple. कि मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पीरियड, ताकत नहीं आ रहा, पीरियड। बट द क्वेश्चन इज, वो ताकत नहीं आना इज जस्ट एन इंडिकेटर, दैट इज जस्ट द थर्मामीटर विच नीड्स टू बी यूज्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग ऑन इन द बॉडी, टू फाइंड देम, कोरिलेट देम, ट्रीट देम विद दैट। सपोजिंग हाइपरलिपिडीमिया देखना है, डायबिटीज है, डायबिटीज को कंट्रोल में करना है। जैसे सर ने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोले सर, मतलब दिस इज फैंटास्टिक। A person who looks after this patient is an endocrinologist, he is a gynecologist, he is a urologist, he is a psychotherapist, and apart from that, he needs to be a very good counselor to listen to that patient of what exactly he has. I'm sure of one thing, Dr. Kothari, one of the greatest sexologists of this country, would be a phenomenal listener. Because this is the only way he would be able to know exactly what is the story of that human being. And these things together, I think, would be able to treat. जो आलोक जी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस मामले में। So ठीक, very good. So प्रकाश सर, अब थोड़ा सा अभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा विराम देते हैं। कुछ आपके कुछ अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस हम जरूर सुनना चाहेंगे जो कि मरीजों के और इन दवाइयों से रिलेटेड कुछ आपके जो इंटरेस्टिंग किस्से हों, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्लीज। हाँ, एक बार कुछ इंटरव्यू में मुझे ये सवाल पूछा था कि नरेट योर मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। There was a very famous surgeon here known as urologist known as Ajit Phadke, and another psychiatrist was there, Dr. Bagadia. They both jointly referred me a case. Sir, non-consummation of marriage for 25 years, 24 or 25 years. Patient had desire, he used to get erection, but was unable to penetrate, and the penis would remain stiff. He must have been to about umpteen number of cases. At the end, he was diagnosed as कोई schizophrenic है, mental case है. Do you know, when they came to me, I keep dolls with me, the mannequins, and I asked them to show me what positions you do. He had desire, he would get erection, but he was unable to penetrate because he would put his legs outside hers. So in that position, you can't penetrate, and somehow or the other, as the Western world, in the Western world, coital history is not included. So is the case here. But in this patient, what he wanted to learn was how to perform. That is, keeping his legs not outside hers, but inside hers. That was the only problem. And 24 years, माने शादी तो बरकरार थी,
और रिश्ता भी बरकरार था. Story is not ending over here. On the 6th day, the problem was resolved because there was anything to be done. She conceived. By the 1st, she missed her period. Then they came to me, okay, well, doctor, now what to do? I said, my job is over. You go to your urologist and gynecologist because I am a sexual medicine expert. I look after virility, not after fertility. They said, no, doctor. 25 years we did not do anything, so I have come here for a child. I came for the treatment only for that. They went to the gynecologist. Gynecologist said at the age of 42, there is no point in treating you. And I knew that if I'll tell that lady would go in shock. I consoled her, told her everything, and we'll meet in the next week. She missed her period. I said, you get the urine. I got it examined for the pregnancy test. At 2 places, sir, it was positive. She delivered in Bridge Candy Hospital. You'll be surprised to know what. Twins, and that to 2 boys. So that was my most interesting case. When Anil Dharkar took my interview for Debonair and one chap from BBC, I narrated this, and Alok, you are the 3rd person. Perhaps you are more handsome than all of them. And I just recalled that, I said, the boss say, every case is an interesting case. Every case is an interesting case. So there was another case. It is like. So there was another case. Please, So patient had desire, got erection, but was unable to penetrate. Everything was fine. There was no problem with him at all. 2 wives ran away. 3rd wife was a nurse. She told doctor, it is a fact that he gets erection. Erection is sustained. This is my 2nd marriage, but he is unable to penetrate. Do you know what was happening? That was a case of fracture penis. So in fracture penis would buckle. All his tests were normal, but his axial pressure was less than 80 millimeters of mercury, which should be more than 120. So it needed a repair from a intelligent urologist like Dr. Jindal or somebody like that, So this was the situation, that penis would buckle. Everything was fine, but he could not pressure because pressure tiny. Sir, yes, no, sir, please. So this was a fracture of the penis which was responsible, and I could diagnose because the nurse told me the story that this is my 2nd marriage. I don't talk. So sometimes, so since then I am very, very cautious about each and every case. जो आपने बताया बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए. You need to be a good listener, sir. Sir, there's a very interesting case because of which I got interested in sexual medicine. I'll be honest. मैं सर शेयर करता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी थी. I told you while during my MS, at the starting of my MS, we used to do a lot of andrology work, VEA, VZA, all these surgeries. But there was a clinic of family, it was known as family welfare, where interns used to be sent because all these people with sexual medicine need to be dealt with the lowest person in the story. This is what the story used to go on. And something interesting happened. And the interesting thing happened was, in those days, there was no other drug. So there's this patient who came to us. Patient to nahi kahunga, he came in the morning and he said, Doctor Sahab, I am getting married. मेरी शादी हो रही है परसों और मैं सुसाइड करने जा रहा हूं. तो I asked him, what is the problem? He said, मैं सुसाइड यूं करने जा रहा हूं कि मेरे बस की कुछ नहीं है. So I asked him कि तुम शादी क्यों कर रहे हो अगर स्टोरी ये है. तो he said, शादी हो रही है पर I will not be able to bear the fact that I cannot do something, so I might as well suicide. And his story was, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता. This was his story. This is the story he was giving at that time. So I took his history. In his history, he had morning erections, which I came to know. Now there was nothing available, so I told him we had in those days vitamin C, Lim C. So I took out 3 tablets of vitamin C. I was sitting in the OPD. I was a first year postgraduate, sir. So I took out a tablet of Lim C and I told him, जब सेक्स करने लगो इसको निकाल के जबान पे रखना. अगर खट्टी लगे मतलब काम चल रहा है. And sir, the truth is, I got a call
Exactly 3 days after 3 days in the morning, डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हो, चरण छूने आए. So, sir, and this is a fact. And after that, I treated so many of his relatives for infertility. I mean, his whole village, I think, I treated for infertility. but, sir, that was the day I realized that something so small, which we think, which is sexual medicine, or so inconsequential, is one of the most powerful forces of our human existence, which need to be looked into. And so that was the time when I told my professor that, sir, there should be a department of sexual medicine over here. That is when he said कि भैया वो डॉक्टर कोठारी साहब है, उन्हीं को ले आओ भैया यहाँ. सर इसमें इसी ऑन द लाइटर नोट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि एक सेक्सोलॉजिस्ट किसी की जान भी बचा सकता है. Yes. Yes. दो या बहुत सारे लोग. सर इसमें मैं एक नहीं मैंने सर मैंने उससे कही थी ये बात कि सुसाइड नोट में मेरा नाम मत लिखना. सर एक बड़ा एक टू एंड विद अ लाइटर नोट. जी. नो सर, इट इज you cannot end so easily, sir. Alok, how much time do we enjoy orgasm? Oh. How much time do we enjoy orgasm? Not more than half a minute per week, and not more than half an hour per year. But still, it's an important phenomena. The mathematics of misery and happiness chiefly depends upon this. Correct. Absolutely, sir. So there is one more question. And sir, orgasm is between the 2 ears, and ejaculation is between the 2 legs. So it's. Sir, one more question. Like somebody asked from Gujarat only that do we have got some local applications to improve the erectile dysfunction? हाँ सर, कुछ ऑयल्स मैंने शुरुआत में यूज किए थे, लेकिन 3 महीना देने के बाद द पेशेंट केम एंड रिपोर्टेड कि उसके लुम्ब्रिकल्स और हैंड मसल्स इंप्रूव्ड, बट देयर वाज नो चेंज इन द पीनिस. Thank you, sir. Thank you so much. My pleasure, sir. My pleasure. Sir, आप सवाल ही ऐसा पूछते हैं, आप दोनों याद मत पूछिएगा. तो मेरे सवाल आपको हमेशा याद रहने वाले हैं. नहीं सर, याद रहेगा नहीं. ये बड़े खतरनाक सवाल है. I was totally unprepared. क्या सवाल पूछने वाले हैं मुझे पता ही नहीं था. सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, बिकॉज अक्सर हम लोग देखते हैं पेपर में जापानी तेल, चाइना का तेल, है ना, बंगाली बाबा का तेल. उसमें ऐसा है, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक कहे दोनों ज्ञानी. Apu, any questions more? हाँ जी. सर अभी फेसबुक में आई गॉट ए क्वेश्चन, इवन वन डॉक्टर फ्रॉम महाराष्ट्र, ही जस्ट वांटेड टू आस्क कि one of my patient is having selective ED just with the wife. How to treat the patient? वाइफ को तो चेंज कर नहीं सकते हैं सर. नहीं. This can be helped with the help of supportive psychotherapy and behavior modification. माने हम 4 माले पे हैं, समझो हमको ग्राउंड फ्लोर पर आना है, हमारे पास 2 विकल्प है. एक तो ऊपर से जंप मारो तो उसमें हड्डी टूट जाती है, लेकिन 4 माले से 3 माला, 2 माला और 1 माला, उस वक्त उसकी क्या हालत है, क्या चीज है. समझो छाती की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हाथ पांव थर्राने लगते हैं, पसीना से आ जाता है, घबराहट सी आ जाती है. एंटी एंजाइटी ड्रग कैन वर्क लाइक मैजिक. प्रोप्रानोल, ये इंदिराल जो आती है, इफ यू टेकन 10 मिलीग्राम or 20 milligram 1 hour before the act, it will work like magic. Anxiety बहुत हो जाएगी, आपको हाथ थर्राने लगते हैं, ये होता है. So take something like क्लोनाज़ेपाम की जो दवाई आती है, 1 घंटे पहले ली, एंजाइटी आपकी हाथ थर्राने का, छाती की दिलकश बिल्कुल कम कर देती है. माने इलाज है इसका, ऐसी बात नहीं इलाज नहीं है. और इलाज कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको, कोई खास. लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा, सुनना जरूरी है. दास्तान मोहब्बत
सुननी चाहिए अपने को, तो ही उसका इलाज मुमकिन है। अनलेस यू see, to diagnose a case is not easy, it's not magic, it's challenging to both physician's own therapeutic skills and his comfort with the subject of sexuality. So this takes little time, but you can help this individual, can be helped. Sunil sir, your comment please. You know, Sir, this yes, exactly what sir is saying. Something for all of us to sit down with a patient like this is to just listen to both of them together when they are sitting. And just when you listen to both of them quietly, you know exactly what the problem is. Whether it is anxiety, whether there is some kind of a situation where both of them are not compatible with each other, because of which the problem is happening. There was one patient who I got who said, later on I came to know, when I was just listening to both of them, I realized that he could not have sex with his wife because of the bad breath. That was the reason he could not have. So when you listen to them and you just listen to them, you know exactly what is the problem. These are small problems going on which you can get they're out of their system. So it's an interesting field because it is deeper than what it appears to be. And this is the beauty of this story. wow. So just now I Prakash, received sir? a question. जी Yeah. Prakash sir, जी there's a question like ये जो orgasm है जी ये कितने मिनट्स का होता है, कितने सेकंड्स का होता है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आप बताकर भी हटे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेज्म पे थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे आपसे। जी ऑर्गेज्म तो एक ऐसी चीज है कि ऑर्गेज्म पहले तो दो कान के बीच में होता है, दो टांगों के बीच में नहीं होता है। सब ऑर्गेज्म में चार चीजें होती है। आपको एक सुकून का एहसास होता है। माने अगर गुजराती लोग होते हैं तो हम बोलेंगे तने संतोष मळ्यो, मेल एंड फीमेल बोथ। पंजाबी लोग उसे तसल्ली कहते हैं, तमिल उसे तृप्ति कहते हैं, तेलुगु उसे संतृप्ति कहते हैं, कश्मीरी उसे खुशी कहते हैं, उर्दू में उसे सुकून कहते हैं। एक आदमी झोपड़पट्टी से आई थी, एक औरत, बोलता है डॉक्टर साहब हमारे शौहर जल्दी खत्म हो जाते हैं और हम नशे में नहीं आते हैं। माने ऑर्गेज्म इन अ फीमेल इज लाइक अ स्नीज। If a woman has had one, she knows about it. Otherwise, any attempt to explain it is like explaining it to a rainbow. I mean, explaining a rainbow to a blind man. But orgasm में चार चीज होती है, आलोक। Either you can reach orgasm early, that is early orgasm. You can reach orgasm with a delay, that is delayed orgasm. You can reach orgasm, but there is less pleasure, that is impaired orgasm. And you reach orgasm, but there is no pleasure at all, absent orgasm. So these four things explains everything. The word premature ejaculation, it propagates a myth that ejaculation and orgasm are synonymous. In fact, they are distinctly different and one could occur without the other. So early orgasm is the only terminology which is suitable. एक आदमी आ गया तुम्हारे पास, समझो उसका प्रोस्टेट निकाल दिया है. If he reaches orgasm early, you will call it premature ejaculation, despite that there is no ejaculation outside, which is a paradox. So early orgasm is the word, and we need to recognize orgasm as pleasure which occurs between the 2 ears. But unfortunately, we have been blindly following the West. अभी लोग बोलते हैं डिले हो गया तो बोलते हैं retarded ejaculation. How ejaculation can be retarded? It's a retarded thought. It's a delayed orgasm. We need to have one more session on entire orgasm. सर ये कमाल की चीज है. मैं तो हिंदुस्तानी, जैसे आप कहते हैं ना, the Western world has come up with this. But the truth is, something beautiful has been said by Osho. इरशाद. Sir, he says something. एक वो moment जहां पर टाइम, स्पेस और मैटर एक हो जाते हैं और परम आनंद मिलता है, जो कुछ थोड़े से क्षणों के लिए होता है. यह वो होता है ऑर्गेज्म. और उनका आगे अगर आप विश्लेषण में जाएं तो बड़ी खूबसूरत चीज आती है कि ये जो भाव हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मिलता है, जो पूरी जिंदगी में मिलके शायद कुछ मिनट हो, ये पूरी स्टोरी
अगर इस आनंद में मेडिटेशन के थ्रू जा सकें तो वही परम आनंद या चरम आनंद है जिसको आप चाहने की कोशिश करते हैं. सो द अल्टीमेट एम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली इज टू स्टे इन द स्टेट ऑफ परम आनंद which is orgasmic. Sir, I had a close encounter with Rajneesh ji. Kalyan ji, the music director, called me that Raj Osho wanted to meet to discuss certain things. Right. तब उन्होंने बताया कि there is no good word in Indian language for orgasm. Orgasm. I was the person, I told him, sir, fundamentals मैं आपको बता दूं कि जो word हमारी लैंग्वेजेस में है और कहीं नहीं है. कौन सा वर्ड है? मलयालम में. डू यू नो व्हाट इज द वर्ड? रति मूर्छा. रति मीन्स इंटरकोर्स एंड मूर्छा मीन्स ट्रांस. At that time, Kalyan ji and myself and Osho, we were the only persons together. I had very close encounters. And next time, if you want, I can show you my picture also with him. Oh, wow, he was very बड़े अच्छे. He was a very intelligent man. Very intelligent man. जिंदगी में मेरी दो लोगों को मिलने की तमन्ना थी जो रह गई, जो कभी हो नहीं पाएगी. One was and the other was Michael Jackson. Oh, I'll tell you, these were two people who I have really felt myself deep down, but the epitome of their own art and their own spiritual knowledge. बड़ा यार, बड़ा अच्छा बोलने वाला. तर्क भी बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे तर्क थे. जी जी. अच्छा लगा आपसे मिलकर. हाँ जी सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट बट क्लोजिंग नोट तो मैं सबसे लूंगा सर. उससे पहले, इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज प्रिवेंटेबल? Absolutely. Yes sir. That, you see, preventable, very simple. Remain away from smoking, scotch, stress and sugar. All these 4 S's are not good for the big S. Go for a walk every day, at least HIIT, high intensity interval training. 35 मिनट के लिए 5 मिनट स्लो, 10 मिनट फास्ट, 5 मिनट स्लो, 10 मिनट फास्ट, 5 मिनट स्लो. एंड बिकॉज जो बताया मैंने कि जिसके पांव चले उसके प्राइवेट पार्ट भी चले. फ्लो ऑफ ब्लड विल इंक्रीज, so the mental tranquility would be there, physical balance would be there, more flow of blood in the private parts, hormones will flow more. I mean, so these are the 2 things. And avoid stress of all situations. Avoid stress of all situations. And pranayam could be of great help, especially anulom vilom, and for tranquility of mind, either Brahmari pranayam or shavasana can help an individual to great extent. Thanks sir. सुनील सर. प्रकाश सर. प्रकाश सर, एक क्वेश्चन है जी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आप बहुत ही शानदार बोलते हैं. यार आलोक, एक बात बताऊं, हाँ, आपको मुझे कॉफी पिलानी पड़ेगी. बहुत सवाल पूछ लिए आपने मुझे. सर मैं कॉफी क्या, मैं तो आपको होस्ट करने के लिए रेडी हूँ. आप धर्मशाला आइए. जरूर यार, धर्मशाला आने का तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर. इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस. जी. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जैसे हर एक मर्द का, हर एक उस मतलब जो भी सेक्स के प्रति जागरूक रहता है, उसे किस तरह से मालूम होगा कि उसका पार्टनर जो है सेटिस्फाई हो चुका है? कैसे वो जान पाएगा वो क्या चीजें रहेंगी, वो फिजिकल चीजें, वो मेंटल चीजें, क्या वो फील करेगा कि उसके जो पार्टनर में एक शानदार जो उसको ऑर्गेज्म को उसने उस परम आनंद को जो उसने अपने पार्टनर को क्या वो दिया है या नहीं दिया है, या उसको कैसे पता चलेगा? प्रकाश सर. हाँ, Sherry Height and myself and one another scientist, we were sharing a common platform, Height Report वाली. वहां भी यही सवाल पूछा था. She wrote a book on orgasm. मुझे पूछा जाए only one thing. Best way is to ask her whether she has reached climax or not. Why? Every woman may not have contractions in the vagina. In my practice, 8 out of 10 women have. So if a woman wants to fake that she has reached orgasm, nobody in the world can find out. So best is to ask her. आपको तसल्ली मिली, आपको सुकून मिला,
अगर उसने हाँ कह दिया ठीक है, ना कह दिया तो यू मस्ट सेटिस्फाई हर बाय एनी मींस. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वात्सायना, इन those the fellow who wrote Kama Sutra, and in those days 1600 years ago he mentioned that if a man is unable to satisfy his partner with his private part, then he must satisfy her by pani manthan, that is masturbation, auparishtikam, that is oral sex, and apadravya, that is artificial penis. What is important is sexual pleasure is not a performance to be gauged. It's a pleasure, or more correctly, happiness to be shared between two individuals. And happiness lies between the two ears and not between the two legs. Beautiful. And something which I have always gauged out of the whole story is that intimacy, love, romance is bigger than the ultimate act of intercourse. आपका कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत की आखिरी मंजिल हम बिस्तरी हो सकती है, लेकिन हम बिस्तरी की आखिरी मंजिल मोहब्बत हो वो जरूरी नहीं हो सकती. माने सेक्स कैन बी द क्लाइमैक्स ऑफ लव, बट लव नीड नॉट बी द क्लाइमैक्स ऑफ सेक्स. क्या बात है, यू हैव इंस्पायर्ड मी लाइक मैड. आई होप आलोक अपना कॉफी बरकरार रहेगी. कॉफी चालू आपको पिलानी है? बिल्कुल 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 बरकरार है सर. थैंक यू सर. एक चीज और पूछना चाहूंगा जी. क्या जैसे एक मतलब ये मुझसे पूछा गया था. हाँ. ये मुझसे पूछा गया था जब मैं फॉरेंसिक एग्जाम में अपीयर हो रहा था अपने एमबीबीएस के दौरान. जी. मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द बेस्ट एफ्रोडिसियाक फॉर वुमेन इन दिस वर्ल्ड. For a best aphrodisiac, for men and women both, like एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा एफ्रोडिसियाक क्या होगा और एक पति के लिए सबसे बड़ा एफ्रोडिसियाक क्या होगा? I would say for a man, you see, aphrodisiacs has been existed since the dawn of civilization. There are no two doubts about it. But for a man, the best aphrodisiac would be an attractive and understanding partner would be the best aphrodisiac. An attractive and understanding partner would be the best aphrodisiac. Ayurveda में कहा है, an attractive, understanding partner asking to be enjoyed is the best part. Best aphrodisiac. Asking to be enjoyed. क्या बात है सर? क्या मतलब बहुत बहुत सुंदर. मैं जिंदाल साहब आपको देखता हूँ, मुझे लगता है कि आप कोई अपने पास्ट ख्यालों में चले गए हैं कहीं. नहीं, मैं आपको ना सर मैंने बताया ना सबसे जरूरी चीज लिसनिंग है. जब आप बात करते हैं नहीं मैं आपको लिसन करता हूँ हमेशा. नहीं सर, जब आप बोलते हैं ना जी, जब प्रकाश सर बोलते हैं और सेक्स के ऊपर बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो जल तरंग बजता है. अरे नहीं हम लोग मंद मुग्ध हो जाते हैं सर. अरे नहीं मतलब सर ऐसा है. बिल्कुल सर, ये आप सर जल तरंग है. अरे नहीं, आपकी आलोक सर आपसे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. हम तो भूल जा रहे हैं क्या पूछना है. पोएट है सर ना. मैं अगला क्वेश्चन भूल जा रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या पूछना है. सर इज लाइक पोएट. अरे नहीं सर, नहीं सर. So sir, I think हम लोग रनिंग टाइम एंड टेक्निकल पीपल आर बहुत ज्यादा हमें वो कर रहे हैं कि we have to wind up. Before wind up, I just want a note from each of one. Sir, few take-home lines about the erectile dysfunction from your side, to all our audience, to general public. टेक होम मैसेज जिंदाल साहब से बेहतर कोई नहीं दे सकता. उनकी जो रवानी है, जो स्टाइल है, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि कांटों से भी प्यार किया है कभी कभी, फूलों को भी शर्मसार किया है कभी कभी. जिंदाल साहब तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ही इंतजार किया है कभी कभी. क्या बात है. My goodness, oh my God. पता है कभी कभी महसूस करता हूँ सर गोल्ड मेडल दे दिया आपने तो आज. अरे सर कहूँगा आपको. और
ये सेक्सुअल मेडिसिन को एक ऐसे अंदाज में पेश करना कि सामने वाले को वाकई समझ में आए कि जरूरी भी है, हसीन भी है, रोज की मर्तदा जिंदगी में जरूरत भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज मोहब्बत के साथ में हो तो बड़ी खूबसूरत, बिना मोहब्बत के हो तो कष्ट होगा इसमें। तो ये इतनी सुंदर चीज को इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, मैं सरप्राइज हूँ। डॉक्टर कोठारी, आपको आज एक बात कहूँ, नीरज भाई, अपूर्वा जी, आलोक जी, आपको आज एक बात कहूँ, आज ये ऐसी महफिल बिठाई है कि ऐसा लगा कि स्कॉच के ऊपर बैठ के हम शाम को कोई गजलों की महफिल बिठाई। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सर। दिस इज द बेस्ट ट्रीट फॉर न्यू ईयर, आई थिंक सो। दिस इज द बेस्ट ट्रीट फॉर न्यू ईयर। Dr. Jindal, you need to understand that you were the prime source of inspiration. Let me Sunil sir? admit that. You were the prime source of inspiration. सर हमारे पिलर है जिंदल सर। सुनील हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों बैठे रहें और मैं आपसे प्रश्न पूछता ही रहूं। और हम अरे वाह, सुनते रहे, वाह, लिटरली हम लोग वाह। सुनते रहे। We will come with another part next time. Definitely, we are going to continue this. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, Kothari, sir. for being here. Sir, you, I sir. must thank you. I must. Thank you, Kothari sir, for your. Thank you, sir. Very Kothari kind of sir, you. Jindal sir. Thank you, Alok sir, and Neeraj sir, of course. Thank you. Okay. So I thank you on the behalf of Sexual Medicine Committee, and I thank you, Dr. Neeraj, for giving this opportunity to hold this public forum on the most tabooist type, which is very difficult to talk. So thank you, Neeraj sir. Thank you, Prakash sir, Sunil sir, and my co-moderator, Dr. Apurva. So now I think for closing remarks, Dr. Neeraj to kindly have 2 words, please. Yes, Apurva and Alok, you did wonderful job, conducted very well, and it was educative, informative, and also fun-loving. So it was a light what can be said about our chief guest and our faculty, Dr. Prakash Kothari sir and Jindal sir. They were fantabulous. It was like we didn't realize it is 2 hours. Just thought like it is a few minutes only passed. So it was that much superb. Thank you everyone, and thank you Aishwarya and Mr. Jignesh and Somalia for being there. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. I would really like to thank Dr. Prakash sir, Dr. Sunil sir. Thank you for your presence. We look forward to see you again. Our chairman of Sexual Medicine Committee, Foxy, Dr. Neeraj sir, for the support always we've received from Neeraj sir's end. Our 2 wonderful moderators, Dr. Apurva sir and Dr. Alok sir. Thank you very much. We look forward to see you again. Thank Yes, you. definitely. Thank you, Aishwarya. Thank you.